Inspiration. Today we have our guest, Devi Didi. Hello, Didi. How are you? All is great and all good. And I'm very, very happy to have her today in my show. And it is actually my good fortune that she easily accepted my request. And we will talk about her today. First, I will get her introduction. Didi, can you please share with us your information? Hello, Chunda. Hi, viewers. Good evening, everybody. Hare Krishna. Good time. I'm Devi Lakshmiani from Devlali, born and brought up in Devlali. Studied in Subhash High School, went to Vidco College, thereafter did my graduation at Nasik. Thereafter went for DMLT course. In those years, in 1985, I went to Mumbai and studied DMLT. Thereafter, I started working in Nasik for a year. Thereafter, I was selected for Cantonment General Hospital Board, where blood bank was to be donated by Rotary Club of Devlali. We started blood bank in Devlali Cantonment Hospital. It's a civil hospital for front areas, and I worked for 36 years. Recently, in 2023, December 31st, I got retired from the hospital on the post of blood bank. So my journey in between having number of people, number of organizations I got connected, I started working with them. This is what doing my plan. Okay. And how much I know about you, you're not just connected with the hospital or the blood bank. You are into too much of social causes, a helping hand. Anybody can just call you and reach you. And other than that, you take care of Darshan Academy, to be a part of it. You manage the school activities, the social worker, and you do lots of things. So how do you manage all this? Life has been very simple right from the beginning. I was quite a brilliant child in the family. And if I look, say, 50 years or 40 years back in my life, when I started studying in the school, I was the first girl child of my Nana ji and Dada ji परिवार. So I was very, क्या बोलते हैं, pampered child कि हमारे घर की बड़ी बेटी आई है. तो नाना जी के परिवार में भी और दादा जी के भी परिवार. So I started studying and always being first in the class. दादाजी always had a good, मतलब मेरे लिए अच्छा प्यार था उनका. Then when I completed my 10th, I was the first child to complete 10th in my family. Then for 11th, 12th, because I was from Sindhi medium, so I could not do really well in 12th. So I just said, कि चलो, we will study. But every year I used to go to the college, do admission, come home, get the reference from mom कि दादाजी और everybody saying नहीं नहीं लड़की को कहाँ पढ़ाना है. और फिर 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद टाइम वेस्ट करके फिर मैं चली जाती थी कॉलेज से सर मुझे रिटर्न देना है. रिटर्न मैं ले रही हूँ, आई कैन नॉट स्टडी बिकॉज़ दे यूज्ड टू टेल यू विल नॉट बी गेटिंग द रिफंड. चलो मम्मा बोलती थी पढ़ लो. सो दिस वाज़ माय जर्नी टिल ग्रेजुएशन. अब उसके बाद में ये था कि कुछ तो करना चाहिए. मेडिकल फील्ड का बहुत क्रेज़ था मुझे बचपन से ही, पर उन दिनों में उतना मेरा स्कोर नहीं रहा. फिर मैंने महात्मा गांधी के थ्रू भी हिंदी में वारदा में जाके पेपर्स दिए. And in between, I did my DMLT from Mumbai. So we three friends of us, we went to Mumbai. We stayed together, away from the home. We studied. In the evening, we used to give tuitions. We used to earn. Then घर कैसे चलाना है वो सब हमने सीखा. एक साल पढ़ के फिर then we came back to Nasik. Because in those years, in 86, 85, there were no DMLT college in Nasik. Okay. I came to Nasik and the very first day I got the job in Nasik. And I went to the first doctor of Nasik was Dr. Kirloskar, and IMA blood bank which was set in Savita Hospital. These are very old days of say 40 years back in 86. Thereafter, doctor only told me ki you come from Devlali and Rotary Club of Devlali wanted to donate a blood bank for Devlali and you have worked here, go and you can join there. So somehow I cracked the interview and got the job. Okay, so how has the journey been? Because Devlali is a very small place. Even in today, I mean, I see
टू से वी आर इन द लिबरल सोसाइटी बट देन बहुत सारे ब्लॉकेजेस आज भी हैं, जबकि बहुत मॉडेस्टी आ गई है कि लड़की ना पढ़े, अगर पढ़ भी गई तो फिर बस शादी कर लेनी है, आगे आप लोग को क्या करना है, चूल्हा-चौका करना है। तो क्या आपके लाइफ में ऐसे ब्लॉकेजेस आए थे कि या इट वाज़ अ वेरी ईज़ी जर्नी? अ, डेफ़िनेटली ब्लॉकेजेस तो होंगे। एक तो वो परिवार जहाँ पे लड़की को पढ़ाया नहीं जाता, यहाँ लड़की पढ़ गई है, पढ़ने के बाद जॉब भी मिल गया है, फिर गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। मतलब ये बहुत अच्छे-अच्छे सिनेरियोज़ मैंने लाइफ़ में देखे और मेरे पीछे 3 सिस्टर्स वी आर टोटल 4 सिस्टर्स। तो सबसे बड़ा इश्यू था कि अगर मेरी शादी नहीं होगी तो पीछे बेटियों की शादी कैसे होगी? तो एक होता है ना उन ज़माने में ये होता था कि हमारी बेटी पढ़ी हुई है, लड़का भी तो पढ़ा-लिखा मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट रहीं। फिर एक दिन अचानक मैंने मम्मी को कहा कि तुम मेरे लिए वेट करने से बजाय बाकियों की भी शादी रुक जाए, बाकी घर का काम मतलब जो वो तरीका था बेटियों की शादी करने का, गो अहेड। मुझे उन चीज़ों के लिए फिर रुकना नहीं है। तो इस हिसाब से फिर मेरी सिस्टर्स 2 सिस्टर्स की मैरिज हो गई एंड आई गॉट इनटू ये एक मेरी हैबिट है, आई एम अ वर्कोहॉलिक। मुझे काम चाहिए मतलब आई रियली डोंट वांट टू सिट विदाउट एनी वर्क। तो अगर जॉब लग गई मेरी तो मैं उसमें काफ़ी बिज़ी रही। यहाँ पे घर में दोनों बहनों की शादी भी हो गई, तो मुझे इतना ये नहीं था कि बहनों की शादी हुई है, मैं घर में बड़ी हुई हूँ, मेरी नहीं हुई है, तो इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा। मैं अपने काम में हमेशा बिज़ी रही और मेरी जॉब बड़ी चैलेंजिंग थी। आप अगर आज की ब्लड बैंकिंग का और डोनर्स का सिनेरियो देखोगे और 1988 की बात देखोगे, इट वाज़ रियली टफ एंड जैसे ही 88-89 में मैंने जॉइन किया, इमीडिएटली एचआईवी केम इन दी एड्स जो उसको हम बोलते थे, तब बहुत डर बैठा हुआ था और ब्लड बैंकिंग का सिनेरियो बहुत चेंज होते गया। फॉर मी इट वाज़ अ गुड चैलेंज बिकॉज़ देयर वाज़ नो अनदर डॉक्टर, माय कलीग्स तो जो भी मेरे स्टाफ मैं जिनके साथ काम करती थी, तो हम सबको इसको रन करने के लिए भी बहुत कुछ माथापच्ची करनी पड़ी। And I'm really blessed that I got few donors like Subnumal Manwani from Dubai and Ashraf Parivar from Dubai, who really came forward, donated philanthropically, and we came up with a blood bank in Devlali. So this was my journey. And one fine day, one of my boss said, "तुम सिंधी लोग तो कभी blood दोगे नहीं. You are a receiver people." And I, being from the same community, I could not tolerate that. आई टोल्ड माय डॉक्टर एक दिन याद रखना ये सिंधी लोग ही आपकी ब्लड बैंक भी चलाएंगे और आपके बाकी भी काम चलाएंगे व्हेन आई गॉट रिटायर्ड ही रिमाइंडेड मी दैट दोज वर द सेंटेंस व्हिच यू यूज्ड एंड यू रियली डिड इट फॉर दैट कि सिंधी लोग कम्युनिटी में आए ब्लड डोनेशन करें ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करें सो दिस वे माय जर्नी स्टार्टेड thereafter coincidentally in 1992 I came across few friends who invited me for a JC's club of Divlali. It was named Jade, one of the precious stone. So I went there initially. I thought कि चला पता नहीं यार मैं कर पाऊंगी क्या नहीं कर पाऊंगी because I was a very introvert person. वहाँ मुझे अच्छा लगा because वहाँ community services थी. Right from the childhood, I was quite an obedient child of my parents. मतलब जो पेरेंट्स कहेंगे हाँ मैं हाँ मिला लिया काम कर लिया मतलब माहौल घर में अच्छा रखना ये मेरा नेचर था। फिर जब मैंने जेसीस 92 में जॉइन किया, इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर दे मेड मी प्रेज़िडेंट एंड वी वर्क्ड फॉर द कम्युनिटी। वी डिड ब्लड ग्रुपिंग ऑफ 1100 पीपल in 1988. So different areas. Then from there, I got a feeling of community service because blood banking is a community service. There you have to have a good relation with people, and people when come to you for the blood, they are already in a trauma. राइट। So that I had really felt कि नहीं लोग ट्रॉमा में अगर मेरे पास आ रहे हैं एंड गॉड अगर मुझे वहाँ पे रखा हुआ है तो देयर मस्ट बी सम रीजन सो दिस वे आई वर्क फॉर 3 years rather 4 years for JCs where really we did many community projects like छोटे बच्चों के लिए क्या बोलते हैं number of vaccines polio had started those days so we went in slum areas from there uh, I imbibed the क्या कहते हैं कैंटोनमेंट सोशल सर्विस हॉस्पिटल में बहुत सारे कैंप्स भी किए हुए हैं ना, लाइक फ्री कैंप्स, आई रिमेम्बर कि फ्री आई टेस्ट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे होते थे। जितना मैंने देखा है कि वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम बहुत क्विक है, बोलने के लिए वो एक कैंटोनमेंट हॉस्पिटल लाइक गवर्नमेंट का होता है, बट देन
द सर्विसेज एंड द स्टाफ एंड स्पेशली व्हेन यू गो टू दीदी तो फिर मैं हमेशा जाती थी बिकॉज़ आई एम डायबिटिक सो आई यूज्ड टू गो टू दीदी। दीदी ब्लड टेस्ट करना तो अंदर से पूरा हाल हो रहा था कि क्या होगा? बट देन लुकिंग एट हर स्माइल एंड एवरीबॉडी अराउंड देयर सो दे वुड मेक इट श्योर कि आप उतने कंफर्टेबल हो, तो ये ब्लड कब निकला, कब क्या हुआ कुछ नहीं और शुगर लेवल कितनी है? इट्स ओके कोई नहीं ठीक हो जाएगा। तो ये ठीक हो जाएगा कितनी बार तो मुझे ये कहा जाता था कि तुम बार-बार आती क्यों हो टेस्ट करने के लिए? इट्स ओके हो जाएगा मैनेज। तो जब मेडिकल फील्ड में हमें ऐसे लोग होते हैं क्योंकि लाइक दीदी ने कहा कि हम पहले से ही बहुत डरे हुए थे व्हिच इज़ ट्रू एंड आई हैव फेस्ड इट एक्चुअली। तो उस समय हम लोग को वो एक एक्चुअली मेंटल सपोर्ट चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए। So that was always there from Didi. And now coming to the main topic, कि इंस्पायर एंड लुक विदिन। आपने ऐसा क्या किया? लुक विदिन में क्या जर्नी है जो हमको इंस्पिरेशन देती है? नॉर्मली हम सिर्फ बातें करते हैं, लाइक इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। लेकिन क्या ये इतना आसान है? हर समय स्माइल करना, हर समय पॉजिटिव रहना, हर समय सबका सुनना बिकॉज़ एक ह्यूमन बीइंग है। अब जैसे आई एम अ हीलर तो कभी-कभी मुझे भी लगता है कि समटाइम्स आई टेल माय क्लाइंट्स लाइक एटलीस्ट थोड़ा-सा सुधरो, बट देन नहीं उनके हालात वैसे हैं, किसी की गलती नहीं होती। सो हाउ डू यू मैनेज एंड हाउ वाज़ योर जर्नी टू गो विदिन एंड एनालाइज़ एंड गेट थिंग्स इंस्पायर्ड फॉर योरसेल्फ एंड फॉर अदर्स? I initially told you that I was the eldest child in the family, so there were a number of responsibilities on me because my uh, joint family got separated very soon when I was studying in fourth standard, ओके, and my mother was also an eldest daughter-in-law. She had to go in the family functions of the same. So there, I got the responsibility of being an eldest in the family. So taking care of your four siblings and those days water scarcity वो सब करते-करते वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई और आई टोल्ड यू दैट आई वाज़ एन ओबीडिएंट चाइल्ड तो ठीक है मम्मा ने जो कहा वो कर लिया। इस तरह से वो एक मेरा नेचर बन गया था, एक लीडरशिप क्वालिटी थी क्योंकि घर में बड़े होने की वजह से देन यू कमांड ये करना है, वो करना है। पर पैरेलली मुझे आदत भी थी कि आई डू थिंग्स माय सेल्फ। आई लव टू डू थिंग्स रादर देन कमांडिंग ये करके आ जाओ, वो करके आ जाओ। मैं चाहती हूँ कि मैं खुद उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करूँ। उसमें से काफ़ी हद तक क्या होता है जब हम खुद करते हैं ना, तो उसके ड्रॉबैक्स एंड उसकी पॉजिटिव साइन्स एंड हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर ये सारे क्वेश्चंस हमारे खुद सॉल्व होने लगते हैं। अगर वहाँ कोई हिंड्रेंस होती है तो हमें पता है बीइंग एन इंडियन जुगाड़ू भी बन जाते हैं हम। तो जुगाड़ू बनने से कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल के आता है। दूसरी बात है व्हेन यू वर्क नंबर ऑफ एरियाज विद नंबर ऑफ पीपल यू डोंट हेजिटेट कि ये मेरी पोजीशन नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, मैंने क्यों करना है। तो उसमें क्या होता है ना आप सीखते हो बहुत। मेरा एक नेचर रहा था जब मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करती थी, तो मेरी रिस्पेक्ट मैं ये कोशिश करती थी कि एवरी सबऑर्डिनेट वेदर वो स्वीपर हो, अटेंडेंट हो, आई विल टॉक टू देम विथ आप एंड विथ रिस्पेक्ट। मैंने कभी भी तुम करके किसी को बुलाया नहीं होगा, बात नहीं की होगी एंड आई यूज्ड टू केयर कि नहीं आप पहले कर लो, बाद में देखते हैं। तो वो जो बिहेवियर था एक रिस्पेक्ट वाला, उससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। क्योंकि क्या होता था जब उन लोगों को वैसा रिस्पेक्ट मिलता था, तो मैंने अगर एक वर्ड भी बोलना है ना, मेरे लिए 10 लोग भाग कर आए थे, आज मैडम ने ये कहा है, हमको करना है। तो मेरे कलीग्स भी कोशिश करते थे, आज हॉस्पिटल की सफाई करवानी है, देवी को फ़ोन करो, देवी सबको बुला लेगी। तो वो जो एक अप्रोच है जब आप लोगों के साथ बात करते हो अच्छी तरह से, तो लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं। दिस हैज़ बीन माय बेसिक नेचर टू। यहाँ मुझे लुक विदिन का कांसेप्ट समझ में आया बिकॉज़ अगर मैं उस टाइम पे एक पोज़ीशन रख के, एक सीनियर समझ के अपने आप को बिहेव करती थी, तो शायद इतने लोगों का मैं प्यार नहीं पा सकती थी और इतनी जो काम मेरा आसानी से हो जाता था, वो नहीं कर पाती थी। और खुद इन्वॉल्व होने की वजह से लुक विदिन सेल्फ अपने आप को इन्वॉल्व करो हर काम में, फिर सही है, अगर कहीं गलत भी है, खुद इन्वॉल्व होगे तो उसको रेक्टिफाई कर पाओगे। किसी और ने तुम्हारे लिए किया होगा, उसको रेक्टिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। सो दिस वे लुक विदिन का जो फ्रेज़ है, एक्चुअली मेरे स्पिरिचुअल मास्टर का फ्रेज़ है। माय स्पिरिचुअल मास्टर इज़ संत राजेंद्र सिंह जी महाराज फ्रॉम द सावन कृपा रूहानी मिशन एंड साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यूएसए।
बिकॉज़ जब मैं उनके सत्संग के साथ कनेक्ट होती हूँ, तो उनके कुछ फ्रेज़ेज़ मेरे दिलो-दिमाग में गहरे रहते हैं, कि महाराज जी अगर ये वर्ड कुछ कह रहे हैं, तो इसके साथ जीवन जीने के साथ डेफिनिटली वी आर गोइंग टू गो अहेड। तो लुक विद इन के साथ जब इवन आई गिव टॉक्स कॉलेजेस में, मेरे साथ यंग अडल्ट्स टीम है जो से 14 इयर्स टू लेके 40 इयर्स 50 इयर्स के लोग हैं, जिनको सेवा कार्य किस तरह से करना चाहिए, कंसेप्ट क्या है सेवा करने का, why we need to have a community project, because we being a social animal and we are part of God, we need to see God in everywhere, in each and every person या creation of God. तो ये थॉट्स के साथ फिर मेरा थॉट प्रोसेस और लोगों के साथ बिहेव करने का तरीका बदल गया। लुक विद इन का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि जब तक हम अपने आप को नहीं देखेंगे ना, तब तक हमें अपनी सच्चाई नहीं मालूम, कैपेबिलिटी मालूम ही नहीं पड़ेगी। हमें आदत क्या पड़ी हुई है, हम अपने आप को देखते नहीं हैं, हमारा ध्यान होता है बाहर। राइट, जब बड़ों ने एक बार कहा होगा जो हमने सब में सुना भी है, और हम अगर उसको फॉलो करते तो फ़ायदा होगा कि अगर एक उँगली उठाते हो किसी के और तो 4 उँगलियाँ तो तुम्हारे तरफ ही हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए 4 उँगलियों जितना सुनने की। तो एक उँगली ना उठाओ ना, स पाँचों अपने पास रखो। तो लुक विद इन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब तुम अपने आप में रहते हो ना, तब तुम्हारी इनर कॉन्शसनेस, तुम्हारी इनर एनर्जी, आपकी सोल आपके साथ खुद कॉन्टैक्ट करके आपको पॉज़िटिव वाइब्स के साथ कनेक्ट करती है, बिकॉज़ यू हैव नॉट सीन द नेगेटिविटी इन अदर्स। राइट, जब एक देखते हो, नेगेटिव देखते हो, और मुझे एक तकलीफ होती है कोई नेगेटिव बातें भी करता है ना, या जो कोई नेगेटिव गालियाँ भी देता है या बोलते समय रफ बात करना, मैं बोलती हूँ प्लीज़ इफ यू डोंट टॉक सच लैंग्वेज ना, तो अच्छा रहेगा इस टाइम पे, लेट अस टॉक अ वेरी पॉजिटिव लैंग्वेज। तो दिस हैज़ बीन माय बेसिक सो इन शॉर्ट हम सबको अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की। ये जो हम लोग काम करते हैं, घर गृहस्थी, जॉब्स, एक सोसाइटी में जो हम सोशल बीइंग में, जैसे अभी दीदी हैं या मैं हूँ, मैं चंदा, एक चंदा एक ह्यूमन बीइंग है, इसकी बेटी है, उसकी बेटी है, इसकी बीवी है, तो ये एक सोशल फैक्टर हो गया। लेकिन अब दीदी बात कर रहे हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। सी बेसिकली इवन आई सी दिस इन हीलिंग वर्ड। मैं अपने आप पे बहुत काम कर चुकी हूँ और शायद जो मुझे जानते हैं उन्होंने मुझ में पहले से बहुत चेंजेस देखे होंगे। दीदी आपका व्यू बता दीजिए ज़रा मुझ पर। मुझे याद है जब चंदा हॉस्पिटल में आती थी छोटी-सी ब्लड टेस्ट कराने के लिए, तो पहले-पहले बड़ा डरा करती थी, नहीं मैं किसी और को ब्लड नहीं दूँगी, आप ही मेरा ब्लड निकालोगे। और उसके बाद फिर गप्पे मारना मेरा नेचर बन गया था, क्योंकि मुझे याद है एक हमारे टीचर थे, ही वाज़ फ्रॉम रशिया इन 84। ही वाज़ डूइंग पीएचडी इन दोज़ डेज़ ऑन माइस, उनका कोई इंजेक्शन के ऊपर काम चल रहा था। तो ही सेड कि व्हेन यू स्पीक टू पेशेंट हू कम्स टू यू, तो 2 मिनट अगर एक्स्ट्रा टाइम उसको दोगे ना, तो वो जिस पेन जो पेन आप उसको दे रहे हो, वो बात करने में वो पेन चला जाएगा। So that was one good point from him. And second point he said, when you talk to patient and ask him कि exactly उसको problem क्या हो रही है, तो आपको समझ में आएगा कि what you are reporting for his blood for the doctor जो रिपोर्ट दे रहे हो, आप उसको कनेक्ट कर पाओगे कि पेशेंट की ये कंप्लेंट्स थी, और इस कंप्लेंट के साथ आपकी रिपोर्ट क्या जजमेंट हो रही है। तो उस वो भी बहुत पॉजिटिव पॉइंट हमने उनसे सीखी थी। तो जब मेरी रिपोर्टिंग जाती थी तो पीपल यूज्ड टू से कि देवी ने रिपोर्ट किया हुआ है, डेफिनिटली इसमें कोई इश्यू नहीं रहेगा। बिकॉज़ देन वहाँ पे हमें इंटरैक्ट करने की हैबिट पड़ गई पेशेंट के साथ। तो मेरे पास जो भी आते थे, कुछ तो क्योंकि कम्युनिटी कॉन्टैक्ट्स थे, उसकी वजह से भी लोग बात करते थे, और मेरा बोलने का सॉफ्ट कॉर्नर था, तो वो लोग कनेक्ट होते आ रहे थे, और मुझे उसका डबल बेनिफिट ये होता था कि जो मेरे पास पेशेंट आता है, ही हैज़ अ फेथ इन मी एंड आई कैन गिव अ प्रॉपर रिपोर्ट। These 2 things helped me to get connected with people. आई हैव सीन दैट। मैंने बहुत बार मैं अफ्रीका में भी थी कोविड के दौरान। तो एक्चुअली हम लोग को भी बहुत डर लग रहा था बिकॉज़ कोविड जिस तरह से फैला हुआ था, मुझे ये डर लग रहा था कि मैं आऊँगी तो इंडियंस की वज़ह से मुझे कोविड होगा और यहाँ के लोगों को ये डर लग रहा था कि हमारे वज़ह से उनको होगा। तो इतना सब कुछ मेस चल रहा था, तो मुझे तो और कोई समझ में नहीं आया। मैंने दीदी को बोला मैं ये दिन पे आ रही हूँ, मैं आ सकती हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ, आप आ जाओ, ये वैक्सीन भी ये डेट्स पे है, आप ले लेना। सो लाइक मुझे आई पर्सनली फील कि आप सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर सबके बारे में सोचिए। आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ी-सी काइंडनेस कीजिए। सारे अपने
फैमिली को देखिए, घर को, बिज़नेस को, बच्चों को, सबको। लेकिन कुछ समय 10 मिनट, 15 मिनट, हफ्ते में, महीने में एक काइंडनेस का टास्क ज़रूर कीजिए। जितना हम जानते हैं देवलाली के लोगों के बारे में, मुझे याद है पहले किसी की भी मम्मी रास्ते पे चलती थी तो जो स्कूटर पे जा रहा है वो बंदा श्योर करता था कि आंटी चलो आप बैठ जाओ, हम आपको ड्रॉप कर देंगे। तो ये हमारा कल्चर था। देवलाली में माय अंकल यूज्ड टू हैव फिट्स अटैक, आई एम श्योर यू वुड बी नोइंग इट, राइट? तो कहीं पे भी गिर पड़ जाते थे। उनको तो बेचारे को कुछ पता ही नहीं होता था, तो फिर हमको पता होने से पहले 4 पड़ोसी उनको ले आते थे, "क्या हुआ भाई? गिर गए थे, चलो हॉस्पिटल ले जाना।" मतलब हमने कुछ नहीं करा, लेकिन आस-पास के लोगों ने सब कुछ कर दिया बिना हमारे इन्वॉल्वमेंट की। मतलब उस हद तक प्यार, उस हद तक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आज जो हम फेस कर रहे हैं लाइफ में, वी कीप कंप्लेनिंग कि इसने मेरे साथ अच्छा नहीं चला, हमारा समाज बिगड़ गया है, हमारी फैमिलीज़ एक्सेट्रा, एक्सेट्रा बहुत कंप्लेन है। तो मैं ये मानती हूँ कि क्या हम लोग ने इनिशिएटिव क्या लिया? और ऐसा हम लोग को रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना है, आप अपना काम कीजिए, छोड़ दीजिए। राइट दीदी? मैंने Yes. आपको इस तरह से देखा है। अब जैसे मैंने दीदी से कहा दीदी आपको शो पे आना है, तो दीदी ने कहा ओके, उसके बाद कुछ नहीं। आप उनसे पूछिए कि दीदी मुझे ये दिन पे आना है, हेल्प पूरी मिल जाएगी लेकिन एक वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन भी नहीं एक्सपेक्ट कर। तो इतना बड़ा दिल आपके पास कैसे है? ये बात तो जो चंदा ने अभी बताई कि देवलाली जो प्लेस है ना वो कॉस्मो एरिया है और आज भी लोग एक दूसरे को उतनी ही हेल्प करते हैं और उतने ही फैमिलीज के साथ कनेक्टेड है। वहाँ कोई बैरियर नहीं है कि ये ऐसा है वो वैसा है, इसका बैकग्राउंड ये है, कि ये रिलीजन है, इसको ये फॉलो करता है, ये सारी चीजें चलती ही नहीं है। वहाँ पे सच में एक बहुत अच्छी बात है कि अभी भी पीपल आर वेरी कनेक्टेड। सेकेंडली जैसे अभी इन्होंने बताया कि यहाँ से पिकअप करना मेरी भी अभी भी आदत है। मैं जब अपने घर से निकलती हूँ, मैं 3 से 4 किलोमीटर दूर हूँ देवलाली से, इन मिड ऑफ देवलाली एंड नासिक रोड। मैं भी सुबह गाड़ी रुका के देखती हूँ, कोई सीनियर सिटीज़न है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई मार्केट जा रहा है, कोई देवलाली चलना चाहता है, कि आइए गाड़ी में बैठ जाइए। फिर गाड़ी में बैठने के बोलते हैं, "मैडम आपने क्यों बिठाया?" मैंने, "मेरी गाड़ी वैसे ही खाली जा रही है, पहुँच जाओगे।" सो इससे भी एक कनेक्टिविटी मिलती है, बहुत अच्छी तरह से जब आप लोगों से बात करते हो और और जब जाते-जाते उनकी थैंक्स होती है, 2 बातें शेयर होती हैं, तो कहीं न कहीं ये सारी हेल्प होती है। तो जब हम हेल्प मोड में आते हैं, कम्युनिटी सर्विस में आते हैं, तो कहीं न कहीं इनर फीलिंग जो है, हमारी सोल है ही कनेक्टिविटी वाली, बिकॉज़ सोल इज़ पार्ट ऑफ ऑलमाइटी, सुप्रीम पावर, गॉड जिसे हम कहते हैं। तो जैसे गॉड ने हम सबके लिए क्या नहीं बनाया, अगर हम सोचें कि मेरे लिए अलग हवा बनाई, चंदा के लिए अलग बनाई, उसने किसी के लिए कोई अलग नहीं बनाया, हम सबके लिए सब कुछ दिया। पानी भी सेम दिया, हवा भी सेम दी, रोशनी भी सेम दी, हर चीज़ सेम रखी है। तो हम कौन होते हैं यार एक इसको और उसको अलग-अलग करने वाले। अगर ये थॉट को हमने जिस दिन समझ लिया ना, तो शायद बाकी की सारी गिला-शिकवा अपने आप दूर हो जाएँगे। दूसरा साइंस का कांसेप्ट जो हमने अ, 8th 7th 8th में पढ़ा होगा, एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। राइट, अगर ये थॉट मन में बैठ जाए ना दिमाग के ब्रेन में कि जो कर रहे हो वो वापस आना ही है, एक्शन इक्वल रहेगी और अपोजिट रहेगी। सो बी केयरफुल इन योर थॉट्स, बी केयरफुल इन योर वर्ड्स, बी केयरफुल इन योर डीड्स। ये तीनों चीज़ों को अगर केयरफुली से कर लिया, तो जो रिटर्न आएगा तो उतनी बम्बार्डमेंट के साथ आप उसको फेस भी कर पाओगे। बिकॉज़ यू हैव थ्रोन द बॉल। जिस एनर्जी के साथ अपने बॉल वो रिटर्न आएगा, उसको कैच करने की ताकत हमें चाहिए। तो ये 2 कांसेप्ट मेरे बड़े क्लियर हैं कि नहीं मुझे इन 2 कांसेप्ट से बहुत सँभल के चलना है। तो ऑटोमैटिकली वो थॉट्स आने के पहले माइंड में आता है कि नहीं ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं। ये वर्ड्स बोलने के पहले थॉट आता है। तो ये छोटी-सी पॉइंट अगर हम टेक अवे कर समझ के चले ना, कि जीवन में हम जो भी कर रहे हैं, लोगों ने गालियाँ दी तो वो उनका प्रॉब्लम था यार हमारा नहीं है। क्योंकि उन्होंने फेंका है। हमने रिसीव किया या नहीं किया हमारे ऊपर था। रिसीव करेंगे हार्ट पे लगेगा, मन पे लगेगा, क्यों यार छोड़ो। हमने ड्रॉप कर दी कैच खत्म होगी बात। सही। तो आने वाली बात को कितना लेना है ये हमारे ऊपर है। क्योंकि फेंका उन्होंने है, उनको ही देखना है। दूसरी इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक उँगली उठाई 4 हमारे पास है। ये छोटी-छोटी बातें जो हम बड़ों से सुनते हैं, हमारे मिस्टिक लोगों से या एनलाइटेंड संतों से सुनते हैं, अगर उसको जीना शुरू कर दिया ना लाइफ इज़ वेरी सिंपल ऐसे।
आई मीन आई टू बिलीव इन सिंप्लिसिटी। मैं बहुत बदमाश थी, पापा की एकदम बिगड़ी हुई बेटी थी, आज भी मेरे भाई की एकदम बिगड़ी हुई बहन हूँ, बस ये चाहिए था, वो चाहिए था। देन आई रियलाइज्ड आई बिलीव अ लॉट इन लॉर्ड कृष्णा और आई बिलीव अ लॉट इन कर्मा। और मैंने लाइफ में काफ़ी कुछ गिव अप कर दिया, मुझे अभी वो फैंटेसीज़ अट्रैक्ट नहीं करती है, ऐसा नहीं है कि मैं समाज में नहीं हूँ, मैं आज भी जाती हूँ जहाँ ज़रूरत है, लेकिन वो ग्लिटर मुझे अट्रैक्ट नहीं करता बिकॉज़ मेरी जर्नी बहुत अलग होगी। जब आपका एक जैसे दीदी ने कहा विदिन, जब आप वो विदिन काम करने लगते हैं ना, पहली बात तो आपके पास टाइम नहीं रहता है। दूसरी बात क्योंकि क्या होता है ना, हम किसी तरह के लोगों के साथ मिलते हैं। मान लीजिए अभी मैं और दीदी मिले हैं, ये बहुत पॉज़िटिव है और मुझे बड़ा मज़ा आता है गॉसिप करने में या कंप्लेंट्स करने में। So I will just waste her time. Instead, I should just listen to the person who is so enlightened, like such a beautiful soul. आप हर इंसान से कुछ सीख सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप उनसे लेना क्या चाहते हैं। बेसिकली इस शो का मकसद भी वही है। ये कोई लाइमलाइट शो नहीं है, ये कोई बड़े-बड़े लोगों का शो नहीं, लेकिन ये छोटे से मामूली इंसानों के बारे में वो लोग अपनी लाइफ को कैसे शाइन करते हैं। हम बेशक मीडिया में नहीं है, हम बेशक शाहरुख खान, ऐश्वर्या एक्सेट्रा या हम कोई भी जो बड़े लोग हैं, ऑफ कोर्स आई सैल्यूट देम आल्सो, उन्होंने भी बहुत मेहनत की। लेकिन ये हम जैसे मामूली लोगों के लिए है कि हम खुद में भी बहुत हैं। You can also shine and you definitely shine with your deeds. आप अपने कर्मास को देखिए, आप अपने विदिन को देखिए और अपने आप पे खूब काम करिए बिकॉज़ एंड ऑफ द डे ना आप अपने फैमिली में किसी को ले जाएँगे, बच्चे, पति एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ना आप सोशल स्टेटस को लेके जाएँगे, आप जाएँगे अकेले। तो ये जर्नी एक्चुअली आपकी है। आप यहाँ पे सिर्फ ड्रामा प्ले कीजिए, अपना काम कीजिए और मस्त रहिए। है ना दीदी? सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि अपने में जितना रहने में मज़ा है ना, औरों को देखने से बेहतर है कि हम अपने आप को उतना ही टाइम दे दें। क्योंकि मुझे कई बार लगता है कि किसी की फैमिली के बारे में जानकारी लेना, उसकी पोज़ीशन के बारे में जानकारी लेना, उनके इनसाइट के बारे में जानकारी लेने से अच्छा है, क्यों ना अगर उतना ही टाइम मैंने अपने ऊपर वर्क किया तो कुछ ना कुछ मेरा तो निकल के आ जाएगा। फिर वो अलग-अलग तरीके से फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिल सकता है, इमोशनली भी सपोर्ट मिल सकता है, स्पिरिचुअली भी मिल सकता है। तो लुक विद इन का जो कांसेप्ट है, जब तक हम अंतर नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। बिकॉज़ व्हेन वी सी 5 जो कर्म इंद्रियाँ हमारी, ज्ञान इंद्रियाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह को हमने हमेशा सुना हुआ है, पर पाँचों ने इतना हमारे साथ कनेक्टेड हैं, थोड़ा कुछ हुआ नहीं कि इमीडिएटली क्रोध तो इतना भर के आ जाता है। अगर हम क्रोध को थोड़ा भी एनालाइज़ करते हैं, तो सिर्फ़ 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारे, एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स और ये दोनों भी हर एक में बंधे हुए हैं। आज मुझे भी होगा सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कि यार मैं किसी पोज़ीशन में हूँ और 5 मिनट के बाद में मैं किसी और को देखूँगी तो अरे आई एम सो लो, आई एम हुँ। सो इन्फीरियर। तो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी अहम के साथ मुझे गुस्सा दिला देगा और मैंने उल्टा-सीधा बोल दिया, फिर उसका रिएक्ट मुझे सहना ही तो पड़ेगा। इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स मैं क्योंकि फेस नहीं कर पा रही हूँ, ना फेस करने की वजह से भी वापस मेरे को गुस्सा ही है। मतलब गुस्से ने तो मेरे को इन्फीरियॉरिटी में भी नहीं छोड़ा और सुपीरियॉरिटी में भी नहीं छोड़ा। तो जब मैं इन्फीरियॉरिटी और सुपीरियॉरिटी को बैलेंस करना जान जाऊँगी, तो लगेगा कि यार यहाँ गुस्सा करने का मुझे कुछ फ़ायदा ही नहीं था। तो ये लुक विद इन का रिज़ल्ट है। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन, यू मेंशन कि आपके पास यंग मतलब किड्स भी आते हैं मेडिटेशन एंड काफी कुछ उनका इन्वॉल्वमेंट होता है आश्रम में सर्विसेज में, दे डू लॉट्स ऑफ थिंग्स। हाउ इज देयर अप्रोच, उनमें क्या बदलाव आता है जब वो मेडिटेशन और ये सारे चीजों में इन्वॉल्व होते हैं और क्या वो जरूरी है? मैं पहले अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से स्टार्ट किया था कि 1988 में मैंने जॉइनिंग किया एज़ अ जॉब में, फिर 92 में मैंने जेसीस में जब काम किया, देन आई गॉट इन 95 आई गॉट एन अपॉर्च्युनिटी टू वर्क स्मॉल किड्स, द एज ऑफ 3 इयर्स टू 16 14 इयर्स। हम व्हेन आई गॉट कनेक्टेड विद द मिशन एंड आश्रम में मुझे एज़ अ सेवा कार्य मिला था। तो एवरी संडे आई यूज्ड टू टेक मेडिटेशन क्लासेस एंड प्रेयर क्लासेस। वहाँ फिर मेरे रियल क्रिएटिविटी बाहर आई क्योंकि मुझे क्रिएटिव मेरा नेचर रहा है। लिखना है, बात करना है, बोलना है, प्ले राइटिंग है, ये सारा मेरा नेचर रहा था। तब जब उन बच्चों को मैंने उस टाइम पे जो मेडिटेशन, गुड क्वालिटीज़, गुड हैबिट्स ये सब सिखाई थी, आज बच्चे जहाँ भी हैं, आप बिलीव करोगे
आज 30 साल के बाद भी वो बच्चे मुझे माँ करके बुलाते हैं। वाओ! यू विल नॉट बिलीव, वो उनके जो पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, मैरिटल इश्यूज़ होते हैं, वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताते, आज भी मुझे बताते हैं। क्योंकि वो कनेक्टिविटी जब आप उनके साथ बैठ के करते हो ना, वो शेयरिंग जो होती है तब मुझे रियलाइज़ होता है कि व्हाट वाज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग एनीथिंग टू एनीबॉडी, बिकॉज़ आई लर्न्ड द लेसन ऑफ गिव, गिव, गिव। जितना आप देते हो, उतना जितना दे सकते हो उससे कहीं ज़्यादा दो, इन एनी फॉर्म। बिकॉज़ देन जब आप देने वाले हो ना तो आपके हाथ नीचे रहते हैं, देन आप पॉसिबल रहती, देन गॉडली पावर आपके साथ रहती है। तो ये एक फ़ायदा था जब हम बच्चों के साथ कनेक्ट होते हैं। आज उनकी चेंजेस जो भी हैं, जितने भी बच्चे, आई थिंक अराउंड 93 किड्स आई हैड दोज़ डेज़। आई यूज्ड टू कंडक्ट कैंप्स एंड ऑल। तो 93 के 93 बच्चे कहीं न कहीं, कहीं भी गए हैं, दुबई गए हैं, यूएस गए हैं, आज भी कहते हैं कि दीदी ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। तो दे आर रियली गुड पीपल। And this look within, does it help in health factor also? अ लॉट, अ लॉट। बिकॉज़ आप अपने जब लुक विदिन है तो आपकी जो इनर नेचर है वो कामनेस वाला नेचर है। जहाँ काम होगा, मेडिटेशन होगी, शांति होगी, एंगर नहीं होगा। आपकी जो सिस्टम्स हैं, स्पेशली योर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स रियली गुड। एंजाइम्स, एसिड्स उतने ही रिलीज़ होंगे जितनी रिक्वायरमेंट है। एंगर आपके एंजाइम्स को और एसिड्स को इतना रिलीज़ करता है, एसिडिटी, हेडेक, बीपीज़, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस, देन जितनी एसिडिटी बढ़ेगी, अल्सर्स होंगे, सिस्टम्स बिगड़ेंगे, बीपी बिगड़ेगा। तो कहते हैं कि मेडिटेशन हेल्प्स यू सो मच फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली एंड इवन दी स्पिरिचुअली। So तो in short, this gives us the criteria कि आप सिर्फ एक मैजिकल चीज करने से हर स्ट्रीम में एक्सपर्ट बन जाएंगे और आपकी जो लाइफ की जर्नी है वो बहुत स्मूथ चलेगी. And after retirement, what are you doing and what are your plans? uh, I have been associated with many organizations Okay. because initially I told you when I worked with JCs, that tenure was around 5 years. Thereafter, with a mission, I worked with mission. In 1995, I started with Children's Satsang. Thereafter, in 97, in Devlali, the Kirpal Ashram was inaugurated at the hands of His Holiness Sant Rajendra Singh Ji Maharaj. We had few rooms on that day. Master, I was just कि मुझे बच्चों का प्रोग्राम करवाना है. I did the program and there was a welcome song. He just said कि तुम्हें किसने सिखाया ये सब करने के लिए? I said कि I have been doing, so I did it. There he told me कि why don't we start a Darshan Academy school in Devlali? So this is my baby. Though it is my master's missions school, right from the day one I worked there. So every concept, every idea, we did it. It has been almost 25 years. Now I'm with Darshan Academy. Thereafter, I've worked for Sakhi Sangat, Pyara Parivar, Panchayat, Sindhi community programs, and our own community programs. I've been working with them. Number of times I have been with Inner Wheel and all. And now I have started my own lab with a group of few more people. Okay. So because I said ki my basic bread and butter was blood testing. Okay. So we So, started with the name of Sarvotam Laboratories in Devlali. and where is it? It is in the Gulshan Tower, opposite Okay. Bank of Baroda, Okay. Devlali. And here also I have a different concept. It is not only the earning. The motto of the school, the motto of the lab is Sarvotam Lab. Sarvotam itself says ki we will definitely put in best in it. The main is precise reports. Secondly, your health, our concern. In that, we are going to hold many camps. The first camp was done on 29th of January. Know your bones, because these days, whomsoever you talk to, टांगे दुख रही हैं, पैर दुख रहे हैं, कमर में प्रॉब्लम है, this, that, we have number of issues. So we started with Know Your Bones first camp. We did BMD and uric acid free of charge, so that people should know what exactly is their bone capacity, mass density. We had orthopedic doctor too. So this way, every 3 months, every 2 months, I'll be trying to hold a camp where you can understand prevention is better to be
sufferer of disease. People used to say prevention is better than cure. Cure is when you are suffering, और यहाँ पे आप सफरर मत बनो, आप पहले प्रिवेंट कर लो। तो ये जो बेसिक जो इन्वेस्टिगेशन टेस्ट होती हैं, ये ज़रूरी हो जाती हैं। नंबर ऑफ टाइम्स आई सजेस्ट पीपल कि आप ईयरली एक बार बेसिक चेकअप करवा लिया करो, so that you know कि where is your vitamin B, vitamin D, where are your other parameters, so that you can take care of it. ओके, सो नाउ अब आप सबको पता चल गया होगा कि देवी दीदी का खुद का लैब है, तो आपको जिनको भी जाना है, कोई भी हेल्प चाहिए, हमारी खुद की पैथोलॉजी लैब है, जब चाहिए जाइए, दीदी को कॉल कीजिए और परेशान करेंगे हम आपको, एंड शी इज़ ऑलवेज़ लाइक ओपन हैंड्स, आइए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। सो विथ दिस आई थैंक यू सो मच दीदी, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, एंड आई होप यू ऑल गॉट लॉट्स ऑफ इनसाइट्स। आप सबको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, और ऐसे खूब सारे सेशंस हमारे पास आगे भी आएँगे। ये शो होगा सैटरडे को 5 बजे। हम अलग-अलग बैकग्राउंड्स के लोगों को लाएँगे, और इसी तरह साथ बने रहिए। हम भी बढ़ेंगे, आपको भी बढ़ाएँगे और खूब सारी मोटिवेशनल स्टोरीज़ देंगे। विद दिस आई टेक योर लीव। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू दीदी। Thank you so much. थैंक Thank you so much. मुझे लगा